हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है? हाँ, और आजकल पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या फिर नहीं, भूल के सब कुछ छोड़ दिया? मैंने कुछ टाइम से लेक्चर अपलोड नहीं किया है ना, 2 दिन हो गए मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया। चलो, तो आज हमारा लेक्चर जो होने वाला है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट न्यू टॉपिक होने वाला है। वो क्या है? ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारी ब्रेकियल आर्टरी, एल्बो एनास्टोमोसिस और एक लास्ट क्या है, क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, सो हम लोग ये सारे तीनों जो स्ट्रक्चर्स है बिल्कुल डिटेल में, इनकी बाउंड्रीज क्या है, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते, एक एक चीज हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। ओके, मैं आगे आप लोगों को और कुछ बताऊं डिटेल में, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जाकर के टेबल चेयर पे बैठ जाओ। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे छोटी सी रिक्वेस्ट है तो सब्सक्राइब करने को बोल रही होगी, है ना? देखो, सब्सक्राइब करने को मैं तभी बोलूंगी जब आपको मेरा चैनल यूजफुल लगेगा। तो ठीक है, अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले जाइए टेबल चेयर पे बैठिए और पेन और पेपर लेके। ठीक है, इफ यू डोंट हैव योर पेन पेंसिल योर नोटबुक योर बुक्स, ओके, दैट मीन्स यू आर मेकिंग योर सेल्फ फूल। Okay, what's my way of study? I love to sit on chair and then start studying. I have my every important thing like my water bottle, something to eat in between. Okay, then proper notebook, book separate, everything separate. Then my sticky notes, highlighter, sketch, pencil color, like everything. Without your copies or books, you are thinking that you can study in a much better way. That means you are making yourself foolish. If you sit right now on your bed and wrapping yourself in a warm blanket, that means you are making yourself fool. You can't study like this. Okay, what you have to do, just prepare your mind first. If you are watching my video this right now, that means you are prepared for your study. Okay, so what you have to do, sit on chair. Okay, sit on chair in a peaceful environment. You have your stationery material, everything with you, then start studying. Okay, so what's our today topic? As I already told you, axillary artery, elbow anastomosis, and what's next, cubital fossa. Okay, if you didn't study axillary artery, you will not able to find out the relation between axillary artery and the brachial artery. I will try to explain in detail, but still I want that first you have to go through with the axillary artery. And most important, if you don't know the structure of the humerus, like where is medial epicondyle, where is lateral epicondyle, where is capitulum, trochlea, then trust me, you are not able to memorize it too long. So what's the exact way of study? What you should do, first you should know the structures. Okay, the structure of the bone and the muscles that are attached to the bone and those nerves that passes through the bone. You should know about all these common basic structure. Then you should start studying brachial artery, your elbow anastomosis, and your cubital fossa. Okay, so we will not talk further. Let's start to our topic. Okay, so our first topic is brachial artery. Okay, what's that? Brachial artery. Okay, so देखो, first and basic most important thing that I want to tell you, I take my lectures in Hindi. Okay, in Hindi, because there are so many students who are from Hindi medium background and they are not able to understand, and everybody have their right to be a doctor, okay, to be a physio, to be a good physio even. So for those students I have to talk in Hindi, because in English there are so many video available on the YouTube, but still there are students who didn't get anything from the YouTube. So I am here for those students. I take lecture only in Hindi. Okay, but this is how, first of all, I'm telling in English everything, because there are so many students who think that I can't teach them in English, है ना? So I just want to say to them, I can teach in English, but the problem is I have so many students who said to me, just please talk in Hindi so that they can understand, because if they go through with the English, they can also read their books. As you all know, there are so many lectures uploaded on the YouTube in English, but there are very few lectures that are available in Hindi for the student. So I am here for you. Don't need to worry about anything. I am here for you. So if you want to join my batch, you can. Okay, you can join the batch. If you want to study, if you really want to study, you can message me, you can DM me on my Instagram. I will definitely reply you there or explain you the topic that you want to learn. Okay, that you want to understand very well. So as for now, हम लोग हिंदी पे वापस आ जाते हैं. हमारा आज का टॉपिक क्या है? ब्रेकियल आर्टरी. और अगर आप लोग मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, so you can also join my batch and the link is given in the description box. Okay, so आज का हमारा टॉपिक क्या है? ब्रेकियल आर्टरी. देखो, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को कुछ टर्म के साथ फेमिलियर करा देना चाहती हूँ. एज आर्टरी है हमारी, तो इसकी ब्रांचेस भी होंगी. ठीक है, क्या होंगी? ब्रांचेस, है ना? तो ब्रांचेस में सबसे पहले जो हमारी ब्रांच आती है वो आती है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. ठीक है, क्या आती है? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. एक और बार बोलो मेरे साथ साथ. ठीक है, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप 2-3 बार, है ना, जोर जोर से बोले, तभी आपको वर्ड याद रहेगा, है ना? वो जो 10 मिनट वाला वीडियो होता है ना, उसमें बस एक एक बार नाम बोलते हैं और खत्म कर देते हैं, है ना? वो जितना छोटा वीडियो होता है उतनी जल्दी सर पे से बाउंस. मैं सच बता रही हूँ, जितना छोटा वीडियो उतनी जल्दी बाउंस हो जाएगा, है ना? उससे आपको कुछ भी रिटेन नहीं रहेगा. तो मैं यहाँ कोशिश करती हूँ क्लास में ही आप लोग को याद हो जाए, इसलिए मैं मल्टीपल टाइम, है ना, मल्टीपल टाइम में एक ही टर्म को बाबा बोलती रहती हूँ. सो हमारी फर्स्ट ब्रांच क्या लिखी हमने? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. प्रोफंडा मतलब डीप. इससे आपकी 2 आर्टरी आती है, एक आती है एंटीरियर और एक होती है पोस्टीरियर, है ना? तो क्या है? एंटीरियर डिसेंडिंग,
डिसेंडिंग वर्ड मैंने क्यों यूज किया है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। हमने क्या देखी, प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये पहले अभी आप नाम देख लो, इनके स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्या होगी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब हम लोग बात करते हैं, एक और हमारे पास है सुपीरियर, है ना, क्या, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या स्ट्रक्चर है, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी। एक और बोलो, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी। सुपीरियर है तो इंफीरियर भी होगी, जाहिर सी बात है। तो नेक्स्ट क्या होगी हमारी, इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी। नेक्स्ट क्या होगी हमारी, इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी। हमने कितनी देखी, प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, ठीक है, जो हमारी दो ब्रांचेस और देती है, एंटीरियर डिसेंडिंग और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसके बाद में क्या है, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी और इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मस्कुलर ब्रांच, ठीक है। क्या देखेंगे, मस्कुलर ब्रांच, मस्कुलर ब्रांच। ये कौन सी हमारी मस्कुलर ब्रांच, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई करती है, ठीक है। ये जो एंटीरियर वाला कंपार्टमेंट है, देख पा रहे हो, एंटीरियर, ये कौन सा है, पोस्टीरियर। ये जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है आर्म का, इसको सप्लाई करती है, किसको, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, है ना, किसको सप्लाई करती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। मैं बोल रही हूँ, लिखा हुआ आई नो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है लोगों को, बट जो मैं बोल रही हूँ उससे समझने की कोशिश करना। मस्कुलर ब्रांच किसको सप्लाई कर रही है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी टर्मिनल ब्रांचेस। नेक्स्ट क्या है, टर्मिनल ब्रांचेस। टर्मिनल ब्रांचेस में कौन कौन सी आती है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, ठीक है। क्या आई, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म बहुत लिखती हूँ, है ना, तो आप लोग बोल रहे होगे कि इससे अच्छा तो वर्बली समझा दो, लिख क्यों रहे हो, बट मैं लिख इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है लिखने में, ठीक है। तो हमारा पहला क्या हो गया, हमारा प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, ठीक है। फिर एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी। नेक्स्ट क्या है, इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी। फिर मस्कुलर ब्रांच में एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई करती है। उसके बाद में टर्मिनल ब्रांचेस। टर्मिनल ब्रांचेस में क्या है आपकी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, ठीक है। अब हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग पूरा डिटेल में अच्छे से डायग्राम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ब्रेकियल आर्टरी से रिलेटेड 2-3 बातें बता देती हूँ। वो ये कि ब्रेकियल आर्टरी निकलती कहाँ से, है ना। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपकी लोअर बॉर्डर से। कहाँ से, लोअर बॉर्डर ऑफ टीरेस मेजर मसल, ठीक है। कहाँ से, लोअर बॉर्डर ऑफ टीरेस मेजर मसल, ठीक है। और ये क्या है, जो ब्रेकियल आर्टरी है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। व्हाट इज ब्रेकियल आर्टरी, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब आपको पता होगा एक्सिलरी आर्टरी खत्म कहाँ पे होती है। जिन लोगों ने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा, है ना, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, उन लोगों ने मेरा पुराना लेक्चर ऑब्वियसली देखा होगा, तो उन लोगों को मैंने बताया था जो एक्सिलरी आर्टरी है वो खत्म कहाँ पे होती है, आपकी टीरेस मेजर पे, ठीक है। जैसे ये आपका स्कैपुला है ना, यहाँ पे क्या है आपकी ग्लेनोइड कैविटी, ये क्या है आपकी ह्यूमरस, है ना। यहाँ पे क्या होती है आपकी टीरेस मेजर मसल। तो जब ये ऊपर से ऐसे आर्टरी आती है, ये यहाँ पे आके खत्म हो गई। ये जो मैं बना रही हूँ, ये वाली, ये कौन सी आर्टरी है आपकी, ये जो मैं बना रही हूँ, ये कौन सी आपकी एक्सिलरी आर्टरी। बट अभी इस एक्सिलरी आर्टरी को नीचे अगर मैं खींच दूं, है ना, नीचे अगर मैं खींच दूं, तो ये कौन सी आर्टरी बन गई आपकी, ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। लोअर बॉर्डर से, टीरेस मेजर के लोअर बॉर्डर से जो निकली वो कौन सी है, हमारी ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो एक्सिलरी आर्टरी है वो कहाँ से निकली। एक्सिलरी आर्टरी किसका कंटिन्यूएशन है, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, सोचो। और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे आप लोगों से चाहिए, बिकॉज मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा पढ़े, थोड़ा ढूंढे, थोड़ी रिसर्च करें, ठीक है। और जो आपके दिमाग के घोड़े हैं उनको थोड़ा दौड़ाए, ठीक है। चलो, हम लोगों ने क्या देखा, हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी है वो कहाँ से निकली, लोअर बॉर्डर ऑफ टीरेस मेजर मसल, ठीक है। अब मैं आगे आपको आर्टरी डिटेल में बना के बताती हूँ, ओके। देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। ये मैंने क्या बनाई है कि क्या है आपकी ह्यूमरस, ठीक है। क्या है ये आपकी ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस बोन में जो प्रेजेंट होती है, ठीक है। नीचे ये मैंने क्या बनाई है आपकी, एक रेडियस है और एक क्या है आपकी अल्ना, ठीक है। एक रेडियस है, एक है अल्ना। ये कौन सा पोर्शन हो गया, मीडियल। ये कौन सा पोर्शन हो गया, लेटरल, ठीक है। ये क्या है, ये जो रेड से शो हो रही है आपको, ये क्या है आपकी ब्रेकियल आर्टरी। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ये जो है, ये जो मैंने ब्लैक से बनाया, ये एक है ना, ब्लैक से जो एक बनाया है मैंने, ये क्या है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे, है ना। अभी नहीं दे रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्वालिटी इंप्रूव कर लो, है ना। जो लोग मतलब 360 पे देखते हैं तो शायद उसको 720 पे, ठीक है, नहीं है नेट तो 480 पे देखने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो, ये क्या है हमारी ब्रेकियल आर्टरी, ये क्या है आपकी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। ये क्या है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। जब फर्दर लेक्चर्स लेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में बात करनी है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग ब्रेकियल आर्टरी के रिलेशन समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ब्रेकियल आर्टरी के आसपास क्या है, ये क्या है आपका सबसे पहला स्ट्रक्चर, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। उसके बाद में ये क्या है, ये है आपकी अल्नर नर्व। यूएन मैंने किसको लिखा है, अल्नर नर्व। ये क्या है आपकी, ये जो ऐसे पास होके आ रही है ना, ऐसे लेटरल से ऐसे मीडियल की तरफ खिसक के आ गई, ये क्या है आपकी,
ये जो है ये है आपकी मीडियन नर्व, ठीक है, क्या है ये आपकी मीडियन नर्व, ठीक है। अब हम लोग इधर बात करते हैं, देखो ह्यूमरस आपकी यहाँ है, इसके एंटीरियर कंपार्टमेंट में इधर ये जो कौन सी मसल प्रेजेंट है, बाइसेप्स है ना, तो यहाँ पे कौन सी मसल प्रेजेंट होगी, सपोज हम लोग अगर ऐसे करके मान लें और ये टेंडन हो गया है ना, बाइसेप्स का टेंडन कहाँ जाके इंसर्ट होता है, बाइसेप्स का टेंडन कहाँ जाके इंसर्ट होता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी में, ठीक है, रेडियल ट्यूबरोसिटी में। तो ये कौन सी हो गई हमारी बाइसेप्स, है ना, बाइसेप्स ब्रेकाई, लो पूरा लिख दिया मैंने आपके लिए, बाइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। एक और जा रही होगी, कहाँ से निकलती है एक, ये आपका अगर स्कैपुला हो गया तो स्कैपुला के कोरेकॉइड प्रोसेस से जो आपकी एक मसल निकलती है वो कौन सी होती है, कोरेकोब्रेकियालिस, है ना, कौन सी होती है, कोरेकोब्रेकियालिस, वो भी ऐसे करके जा रही होगी, कोरेकोब्रेकियालिस, है ना, ऐसे ही जा रही होगी। तो ये क्या हो गई हमारी, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, कोरेकोब्रेकियालिस। तो अभी हम लोग ना मेजर अपने स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देंगे। और ये ग्रीन कलर का ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आपको, ये जो मैंने बनाया है, एक मिनट, हाँ ये दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये क्या है, ये है आपका बाइसिपिटल एपोनेरोसिस, ठीक है, क्या है आपका बाइसिपिटल एपोनेरोसिस, ठीक है, बाइसिपिटल टेंडन नहीं है, क्या है आपका बाइसिपिटल टेंडन के इधर की तरफ मीडियल साइड में आ जाता है। बाइसिपिटल एपोनेरोसिस एक फ्लैट शीट होती है, ठीक है, क्या होता है, एकदम से फ्लैट कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है ना, बाइसिपिटल एपोनेरोसिस। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, है ना, रिलेशन की बात, ब्रेकियल आर्टरी का एंटीरियरली क्या रिलेशन है, ठीक है, पोस्टीरियरली क्या रिलेशन है, उसके बाद में मीडियली क्या रिलेशन है, ठीक है, और उसके बाद में लेटरली क्या रिलेशन है। अगर एंटीरियरली की बात करें तो अपर पे, है ना, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, एंटीरियरली की बात करें तो अपर पे क्या है आपकी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। इनके अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स बिल्कुल अच्छे से, है ना, वेल डायग्रामेटिकली नोट्स जो है वो मैंने बना रखे। आप लोग मुझे क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, हमारी एंटीरियर रिलेशन की बात करेंगे। मैंने क्या बनाया यहाँ पे, एंटीरियरली, ठीक है। एंटीरियर रिलेशन की बात करें तो अपर में क्या है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, है ना। फिर उसके बाद में अगर लोअर की बात करें, ठीक है, लोअर में क्या है आपका बाइसिपिटल एपोनेरोसिस, सी क्यों लिखा है पता नहीं मैंने, ठीक है, बाइसिपिटल एपोनेरोसिस। तो लोअर की बात करें तो क्या है आपका बाइसिपिटल एपोनेरोसिस। अब अपर और लोअर के बीच में मिडिल भी आएगा कि नहीं, है ना। तो देखो मिडिल में यहाँ लिख देती हूँ। अगर मिडिल की बात करें तो आपके मिडिल में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, यहाँ से इस डायग्राम को देख के बताओ मिडिल में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मीडियन नर्व, ठीक है। ये जो आ रही है मीडियन नर्व, अगर आप ऐसे हाथ साइड से देखोगे तो ये ऐसे करके क्रॉस करके जाती है, ऐसे क्रॉस करके, देखो ये दिखाई दे रहा है, ऐसे क्रॉस करके जाएगी। ये क्या है आपकी मीडियल नर्व, ठीक है। अगर मिडिल में बात कर ली जाए तो मीडियल नर्व। तो देखो ध्यान से समझना, एंटीरियरली क्या था आपका मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, एंटीरियरली अपर रीजन में, है ना, अपर रीजन में क्या है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। फिर हमने बात की मिडिल वाले की, मिडिल में क्या है आपकी मीडियन नर्व, और लोअर में जैसे आप नीचे खिसक के आ रहे हो तो लोअर में क्या है आपका बाइसिपिटल एपोनेरोसिस, ठीक है, खत्म। आगे इतना समझ में। अब हम लोग बात किसकी करेंगे, पोस्टीरियर की, है ना, पीछे की तरफ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ओके, होल्ड ऑन, सॉरी 2 सेकंड के ब्रेक के लिए, ठीक है। देखो आपको वीडियो पूरा शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना है, बिकॉज मैंने वीडियो के लास्ट में आपको स्ट्रक्चर्स अपने हाथ पे बना के समझाए हैं, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हो क्लियरली, आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। मैंने अपने हाथों पे, लिटरली मैंने अपने हाथ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, दिखाई दे रहा है। सो आपको क्या करना है, वीडियो पूरे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको लिंक समझ में आ सके इन स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। सो प्लीज लास्ट को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। एंड ब्रेक ओवर, चलो वापस से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ आपका कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, देखो अगर ये मेरा हाथ है, आगे की तरफ अगर मेरा बाइसेप्स है तो पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, खुद से बताओ, ट्राइसेप्स, है ना। तो पोस्टीरियरली हमारा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ट्राइसेप्स, है ना, ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। पीछे की तरफ क्या होगा, ट्राइसेप्स ब्रेकाई। अब मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं आपको ये आपकी ह्यूमरस बोन बता रही थी, तो पीछे की तरफ आपका एक रेडियल ग्रूव होता है ना, क्या होता है, रेडियल ग्रूव। उसमें से क्या निकलती है, रेडियल नर्व पास होती है, ठीक है। क्या पास होती है, रेडियल नर्व। तो इसके पीछे और क्या हो सकता है हमारा, रेडियल नर्व, है ना, क्या होगा, रेडियल नर्व। एंटीरियरली आगे की तरफ क्या है आपका मीडियन नर्व, है ना, और इसके पीछे की तरफ क्या है आपकी, ध्यान दो, पीछे की तरफ क्या है आपकी, रेडियल नर्व। ओके, हमारे 2 स्ट्रक्चर हो गए, एक क्या हो गया बाइसेप्स, एक क्या हो गई रेडियल नर्व। अब हम तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, वो कैसे है, ऐसे आएगी और पीछे की तरफ से निकल जाएगी, ऐसे करके आएगी पीछे की तरफ से निकल जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है हमारी प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। तो इसमें एक और हमारा जो स्ट्रक्चर आता है उसका नाम क्या है, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ठीक है। क्या नाम है, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। अब हम लोग बात करेंगे मीडियली, ठीक है। क्या किसकी बात करेंगे, मीडियली, ठीक है। मीडियली हमारा कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, देखो मीडियली क्या है आपकी अल्नर नर्व,
है ना। इधर की तरफ अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला पोर्शन कौन सा है, मीडियल, ये वाला कौन सा है, लेटरल। अगर मीडियल पोर्शन की बात करें तो कौन सा है, मीडियली, अल्नर नर्व, ठीक है। तो हमारी एक क्या हो गई, अल्नर नर्व। दूसरा अगर हम बात करें तो मीडियली आप आके देखो, ये आपको दिखाई दे रही है ब्लैक लाइन ऐसे करके आ रही है और ऐसे निकल गई, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये ब्लैक लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये वाली, है ना। ये जो ये ब्लैक लाइन मैंने बनाई है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये ऐसे करके आई, है ना, लेटरल से आई और मीडियली आ गई, है ना। ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये डार्क डार्क ब्लैक लाइन, ये क्या है, आपकी मीडियन नर्व, ठीक है। क्या है, मीडियन नर्व। तो मीडियली मैं आपको बोल सकती हूँ मीडियल नर्व प्रेजेंट है ना। मीडियली क्या प्रेजेंट है, आपकी मीडियल नर्व, ठीक है। आगे समझ में, तो हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर देखे मीडियल में, एक अल्नर नर्व, एक मीडियल नर्व, और एक और तीसरा स्ट्रक्चर आता है, वो आता है बेसिलिक वेन, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर आता है, बेसिलिक वेन, ठीक है। अगर मेरा आप लोगों ने पहले वाला लेक्चर अटेंड किया होगा, ठीक है, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, पहले वाला लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा बेसिलिक वेन कहाँ प्रेजेंट होती है। इसीलिए बोलती है सीक्वेंस में पढ़ते हुए आना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस से पढ़ोगे तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से खुद आपको मेमोराइज होने स्टार्ट हो जाएंगी चीजें जब आप उनका लिंक जोड़ोगे, ठीक है। अब एक और क्या है, बेसिलिक वेन। बेसिलिक वेन जो है अराइज कहाँ से होती है, ये जो आपकी बाइसेप्स होती है उसके लोअर बॉर्डर से, है ना। कहाँ से, बाइसेप्स के लोअर बॉर्डर से। ये आपकी बाइसेप्स ब्रेकिया है, इसके लोअर बॉर्डर से, यहाँ से। ये जो मैंने बनाई है ये क्या है आपकी, ये अभी जो मैंने ये बनाई है ये क्या है आपकी, बेसिलिक वेन, ठीक है। और एक क्या होती है, सिफेलिक वेन, ठीक है। एक क्या होती है, सिफेलिक वेन, जो अपर पार्ट से, है ना, यहाँ से अपर पार्ट से ऐसे चलती हुई आती है, ठीक है, अपर पार्ट से, है ना, अपर बॉर्डर से। ये इधर लेटरल की साइड जो बॉर्डर होता है किसका, लेटरल बॉर्डर किसका, आपका बाइसेप्स का, है ना। बाइसेप्स का जो लेटरल बॉर्डर होता है, तो अगर बात की जाए तो अपर पार्ट से ही ये चलती हुई आती है। और लोअर पार्ट से, अगर बाइसेप्स मसल के लोअर पार्ट की बात की जाए तो मीडियल बॉर्डर, है ना, मीडियल बॉर्डर से आपकी कौन सी निकली, बेसिलिक वेन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट है, बेसिलिक वेन, ठीक है। अब बात करते हैं लेटरली की। लिटरली जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। लिटरली जो स्ट्रक्चर्स है बहुत सिंपल है। देखो आप लोग मुझे खुद से बताओ, लिटरली वाला पोर्शन है इधर वाला, तो इधर क्या प्रेजेंट है, कोरेकोब्रेकियालिस, है ना। क्या प्रेजेंट है, कोरेकोब्रेकियालिस। एक और क्या प्रेजेंट है, बाइसेप्स ब्रेकिया। एक और क्या प्रेजेंट है आपकी, बाइसेप्स ब्रेकिया, ठीक है। कोरेकोब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकिया। अब बताओ एक और क्या प्रेजेंट है, ये मीडियन नर्व, यस मीडियन नर्व, है ना। एक और क्या प्रेजेंट है, मीडियन नर्व। अब आप लोग बोलोगे मीडियन नर्व तो बहुत दुष्ट है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो हर जगह बीच में आ रही है, एंटीरियर स्ट्रक्चर में भी आ गई, ठीक है। अगर हम लोग मीडियली बात करें तो मीडियली भी आ रही है, लेटरली बात कर रहे हैं तो लेटरली भी आ रही है, क्यों, क्योंकि वो है ही ऐसी। देखो ऐसे आपका लेटरल, है ना, लेटरल से मीडियल की तरफ वो अराइज होती है ना, लेटरल से मीडियल, मैं बताया ना, लेटरल से ऐसे मीडियल होके आती है, लेटरल से मीडियल। अगर आगे से देखोगे तब भी वो आपको दिखेगी, है ना। और अगर मीडियल की तरफ देखोगे तो ऑब्वियसली मीडियल भी आपकी लोअर पार्ट में आपकी प्रेजेंट होगी। अगर इधर लेटरली भी देखोगे तो ऊपर से तो लेटरली आ रही थी ना, तो लेटरली भी प्रेजेंट है, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, ये चारों स्ट्रक्चर एक और बार समझ लेते हैं ना, जिससे कि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, और आप स्ट्रक्चर्स भूले भी ना। देखो एंटीरियर वाले में आपके तीन हमने बात की थी, एक अपर, एक मिडिल, एक लोअर, ठीक है। अपर वाले में क्या है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। मिडिल वाले में क्या है, मीडियन नर्व। लोअर वाले में क्या है आपका, बाइसेपिटल एपोनेरोसिस, ठीक है। लोअर वाले में क्या है, बाइसेपिटल एपोनेरोसिस। अब मीडियल की बात करते हैं, मीडियल में क्या है, अल्नर नर्व, मीडियल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, मीडियन नर्व, मीडियल है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, बेसिलिक वेन। ये जो मैंने आपको बनाई है ना, इस स्ट्रक्चर का नाम नहीं लिखा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेसिलिक वेन, ठीक है। क्या है, बेसिलिक वेन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी इधर वाले स्ट्रक्चर की। अब हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियरली की, ठीक है। तो पोस्टीरियरली आपकी पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, ट्राइसेप्स, ठीक है। और क्या है आपकी रेडियल नर्व, क्यों, क्योंकि रेडियल ग्रूव में से पास होती है, जो ऑब्लिक रेडियल ग्रूव होता है। उसके बाद क्या है, प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, ठीक है, ऐसे ऊपर से आती है और पीछे की तरफ चली जाती है ना, जिसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, है ना, डिसेंडिंग आर्टरीज, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं लेटरली। लेटरली क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है आपकी, कोरेकोब्रेकियालिस, उसके बाद में क्या है, बाइसेप्स ब्रेकिया, और उसके बाद में क्या है आपकी मीडियन नर्व। और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लेटरली, जो कि मैं बताना भूल गई, ये टेंडन, टेंडन तो हम लोग भूल ही गए। बाइसेप्स ब्रेकिया का टेंडन कहाँ फिट होता है, रेडियस पे, है ना, रेडियस पे जाके। और रेडियस किस साइड की बोन है, लेटरल साइड की। अगर फोरआर्म में बात की जाए तो रेडियस कौन सी बोन है, लेटरल साइड की बोन है। तो इसमें एक और कौन सा आ जाएगा आपका, बाइसेप्स का टेंडन, है ना, बाइसेप्स का टेंडन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, लिटरली हमारे कितने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, 4, ठीक है। कितने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, 4। इतना सारे स्ट्रक्चर्स होता है ना, तो समझ सकते हो कि एनाटॉमी आपको कितना डीप में पढ़ने की जरूरत है ना। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे इसको आगे। आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रेकियल आर्टरी से जो ब्रांचेस निकले डिटेल में डायग्रामेटिकली, ओके। चलो अब हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई है आपकी ह्यूमरस, ठीक है। ये क्या है आपकी रेडियस, ये क्या है आपकी अल्ना, ठीक है। तो देखो कि जो एक ब्रांच है वो है आपकी प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी। क्या है, जो मैं हमेशा से आपको बोलती हुई आ रही हूँ, प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी। ये क्या है आपकी प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, ठीक है। इसकी दो ब्रांच है, एक तो एंटीरियरली आ गई,
एक पोस्टीरियरली भी आ रही है ना, ऐसे जो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ वो कैसा है, पोस्टीरियरली स्ट्रक्चर है। एक एंटीरियरली तो है ही है, एक क्या है, पोस्टीरियरली स्ट्रक्चर है ना। डिसेंडिंग क्यों बोला, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है। डिसेंडिंग क्यों बोला, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। क्या हो गई, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और ये जो पोस्टीरियर आ रही है ना, पीछे से जो आ रही है, डॉटेड स्ट्रक्चर है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, है ना। ये क्या हो गई हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब एक और कौन सी निकली, एक निकली आपकी सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, ठीक है। ऐसे मैंने इसको यहाँ पे डॉटेड क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि ये हमारे मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से पास होती है। ये तो आपको पता है ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये क्या है, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। ये क्या है, लेटरल, है ना, ये क्या है, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, है ना। यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कैपिटुलम, है ना। और यहाँ पे एक और कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिस जो मीडियली थोड़ा ज्यादा निकला हुआ रहता है ना, प्रोट्रूडेड रहता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, है ना। कैपिटुलम के पास में क्या होता है, ट्रॉक्लिया, है ना। ये क्या है आपका सी कैपिटुलम, ये क्या है आपका टी ट्रॉक्लिया, ठीक है। चलो अब हम लोग किसकी बात कर रहे थे, आपकी ये क्या है, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, ठीक है। ये क्या है, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, समझ जाना मेरे बोलने से, क्या है, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से होके जाती है। अब सुपीरियर है तो इंफीरियर भी होगी, इंफीरियर यहाँ से निकली, ये क्या है आपकी इंफीरियर, है ना। इसको मैं मार्क कर देती हूँ, ये क्या है आपकी इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर के बाद में क्या है आपकी इंफीरियर, ठीक है। इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी को ही हम एक और नाम देते हैं सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी। क्या नाम देते हैं हम, सुप्राट्रॉक्लियर ब्रांच, है ना, आर्टरी नहीं बोलते, सुप्राट्रॉक्लियर ब्रांच, है ना। क्या बोला, सुप्रा मतलब ऊपर, ट्रॉक्लिया मतलब ट्रॉक्लिया के ऊपर, है ना, सुप्राट्रॉक्लियर ब्रांच, ठीक है। क्या है ये आपकी सुप्राट्रॉक्लियर ब्रांच, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये क्या है आपकी एंटीरियर डिसेंडिंग जो आर्टरी है, इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है रेडियल कोलेट्रल आर्टरी। किस नाम से जानते हैं, रेडियल कोलेट्रल आर्टरी। इसी का जो है दूसरा नाम है वो क्या है आपका, रेडियल कोलेट्रल आर्टरी। अब हम लोग बात करेंगे इस कोलेट्रल वर्ड का मतलब क्या है। इस कोलेट्रल वर्ड का मतलब है कि जो आपकी आर्टरी निकल रही है वो सेम डायरेक्शन में, है ना, ब्लड फ्लो के सेम डायरेक्शन में। अगर ऐसे आपकी आर्टरी है तो उसकी ब्रांच भी इसी डायरेक्शन में, है ना। अगर ऐसे आपकी आर्टरी आ रही है तो ब्रांच भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक्सिलरी आर्टरी बताई होगी, अभी आगे भी बताऊंगी, है ना। तो कुछ जगह क्या होता है, ब्रांच जैसे ऊपर सप्लाई करती है स्ट्रक्चर को, है ना, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकरेंट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड देते हैं रिकरेंट। और कोलेट्रल मतलब सेम डायरेक्शन में, है ना, कोलेट्रल। चलो इतना हमने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियर। एंटीरियर वाली का अगर नाम है, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का नाम है, तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का भी नाम होगा। इसका नाम क्या है, सो इसका नाम है हमारा मिडिल कोलेट्रल, ठीक है, मिडिल कोलेट्रल आर्टरी, ठीक है। क्या नाम है, मिडिल कोलेट्रल आर्टरी। समझ गए। अब तक हमने क्या क्या देखा, अब तक हमने क्या क्या देखा, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी जिसकी दो ब्रांच थी, एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर वाली का एक और नाम क्या है, रेडियल कोलेट्रल आर्टरी। क्या नाम है, रेडियल कोलेट्रल आर्टरी। पोस्टीरियर वाली का एक और नाम है, एक और नाम क्या है, मिडिल कोलेट्रल आर्टरी। क्या नाम है, मिडिल कोलेट्रल आर्टरी। फिर सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, जिसको हमने एक और नाम दिया सुप्राट्रॉक्लियर ब्रांच। क्या नाम दिया, सुप्राट्रॉक्लियर ब्रांच। क्यों, क्योंकि हमारे ट्रॉक्लिया के ऊपर था। अब बात करते हैं दो की, ठीक है। ये अब नीचे बात करते हैं टर्मिनल, जो हमारी लास्ट दो रह गई थी। देखो ये क्या है, ये जो आपकी आर्टरी आ रही है ना, इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं। ये वाली जो आपकी आर्टरी आ रही है, कौन सी है आपकी, ब्रेकियल आर्टरी, है ना। तो देखो ब्रेकियल आर्टरी का डिवीजन हो जाता है यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके। क्या है, नेक ऑफ रेडियस। क्या है, नेक ऑफ रेडियस। मैं इसे दूसरे कलर से मार्क करती हूँ। ये क्या है, नेक ऑफ रेडियस, है ना। नेक ऑफ रेडियस पे आके क्या हुआ, डिवाइड हो गई। क्या डिवाइड हो गई, ये जो आपकी ब्रेकियल आर्टरी थी, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, इसीलिए इसको बोला टर्मिनल, ठीक है। दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो एक क्या दे दी इसने, ये वाली जो चल रही है ना, ये क्या है आपकी रेडियल आर्टरी, और ये क्या है आपकी अल्नर आर्टरी। क्या है, ये आपकी अल्नर आर्टरी, और ये क्या है आपकी रेडियल आर्टरी। समझ गए, यही आपकी ब्रेकियल आर्टरी है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यही है आपकी ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी के ब्रांचेस, ठीक है। हमने क्या देखा, हमारा एक और बार रिवाइज करें, बोलोगे कितनी बार रिवाइज करोगे मैम, बोरिंग हो रहा है ना बहुत ज्यादा, बट कोई बात नहीं, एक और बार करते हैं ना, जल्दी क्विक रिवीजन करेंगे। प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी जिसको नाम दिया सुप्राट्रॉक्लियर ब्रांच। उसके बाद में क्या है आपकी एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसका दूसरा नाम क्या है, रेडियल कोलेट्रल आर्टरी। फिर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसका दूसरा नाम क्या है, मिडिल कोलेट्रल आर्टरी। उसके बाद में आपकी क्या है, रेडियल आर्टरी, और उसके बाद में क्या है, अल्नर आर्टरी, ठीक है। ये होता है हमारा टॉपिक यहीं पे दी एंड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो क्या है आपका एल्बो एनास्टोमोसिस। क्या है,
एल्बो एनास्टोमोसिस, तो उसकी शुरुआत में यहीं से कर देती हूँ। एनास्टोमोसिस में आपकी कितनी होती है? एनास्टोमोसिस में टोटल 8 आर्टरी होती है ना। एल्बो एनास्टोमोसिस जो होता है उसमें टोटल 8 आर्टरी होती हैं। कितनी होती है? 8। तो 4 कौन कौन सी होती हैं? ये जो कोलेट्रल वर्ड जिनमें आ रहा है ना, ये कोलेट्रल वर्ड जिनमें आ रहा है ये वाली, यही 4 है ना। ये 4 क्या होती है? ऊपर का बनाते कोलेट्रल पोर्शन। एक ये वाली है ना, और क्या है आपकी? एक ये वाली है ना। ये क्या करती हैं आपकी? ये चारों ऊपर वाला पोर्शन में। अब 4 इसके नीचे से भी जा रही होंगी, जिनको हम बोलते हैं रिकरेंट आर्टरी। जिनको क्या बोलते हैं? रिकरेंट आर्टरी। तो 4 तो ये समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज और बताती हूँ, जो पीछे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये क्या है आपकी? ये जो नीचे है ये क्या है आपकी? अल्नर आर्टरी है ना। अल्नर आर्टरी से एक ब्रांच निकली आपकी, अल्नर आर्टरी से एक ब्रांच निकली, जिसको हमने क्या नाम दिया? कॉमन इंट्रोशियस। क्या है ये? कॉमन इंट्रोशियस ब्रांच है ना। क्या है? कॉमन इंट्रोशियस ब्रांच। उसके बाद में आपकी 2 निकली, कॉमन से 2 निकली। कॉमन इसीलिए नाम है क्योंकि इसके बाद में 2 और निकली। एक क्या निकली? एंटीरियर इंट्रोशियस, और एक और क्या निकला आपका? पोस्टीरियर इंट्रोशियस। ठीक है, एक और क्या निकला? पोस्टीरियर इंट्रोशियस। इसी पोस्टीरियर इंट्रोशियस से आपकी ऊपर एक ब्रांच जा रही होगी, जिसको हम पोस्टीरियर रिकरेंट इंट्रोशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर रिकरेंट इंट्रोशियस। वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट क्या है हमारा? एल्बो एनास्टोमोसिस। एल्बो एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? ये क्या होता है कि एक ऐसा लिंक है जो 2 स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है ना। एनास्टोमोसिस मतलब कनेक्शन बिटवीन 2 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमारी सप्लाई होगी है ना, जो भी आर्टरी सप्लाई कर रही होगी वो बोन्स को, लिगामेंट्स को है ना, और आसपास के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं ना, जो एल्बो के आसपास के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, बोन्स, लिगामेंट, उन सबको। ठीक है, चलो अब हम लोग किसकी बात करते हैं? एल्बो एनास्टोमोसिस जो है वो कौन कौन सी आर्टरी से मिलकर बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपकी ब्रेकियल आर्टरी है ना। यहाँ से हो गया डिवीजन, नेक ऑफ रेडियस से हो गया डिवीजन। ये क्या है आपकी? ह्यूमरस। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? अल्ना। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ से क्या बनाई थी? प्रोफंडस ब्रेकियल आर्टरी है ना। प्रोफंडस ब्रेकियल आर्टरी जिसकी क्या थी? एक एंटीरियर ब्रांच थी। ठीक है, एक क्या थी? पोस्टीरियर ब्रांच थी, है ना। ठीक है, एक क्या थी? पोस्टीरियर ब्रांच थी। क्लियरली दिखाई दे रहा है? एक एंटीरियर ब्रांच, एक पोस्टीरियर ब्रांच। उसके बाद में क्या थी? यहाँ से आई आपकी, जो इसके पोस्टीरियरली क्रॉस करके गई थी, है ना। ये क्या है? अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे करके दिखा दूं आपको तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है दिक्कत। तो ये क्या हो गई आपकी? पीछे वाले स्ट्रक्चर को सप्लाई कर रही है, बट ये मैंने ऐसे दिखा दिया है ना। तो ये कौन सी आपकी? सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी। एक आपकी ऐसे करके होगी, इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी। ठीक है, खत्म। ये 4 तो आपको पहले से ही पता थे। ये जो पॉइंट्स है लिख देती हूँ, इसको हम लोग एंटीरियर की जगह में लिख सकती हूँ रेडियल कोलेट्रल आर्टरी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अभी हमने समझा था। ये क्या हो गई आपकी? रेडियल कोलेट्रल आर्टरी। ठीक है, ये पीछे वाला कौन सा पोर्शन है? मिडिल कोलेट्रल आर्टरी। ठीक है, फिर ये क्या है? सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, और एक और क्या है? इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब हम लोग नीचे के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ये हमारे 4 स्ट्रक्चर हो गए। अब हम लोग रिकरेंट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जिनको मैं आपको दूसरे मार्कर से दिखाती हूँ। ठीक है, देखो ये जो है आपकी रेडियल आर्टरी के ऊपर की तरफ एक ब्रांच देती है ना। ऊपर की तरफ एक ब्रांच देती है, जिसको हमने नाम दिया क्या? ऐसे करके इसने एक ब्रांच थी, जिसको हमने नाम दिया रेडियल रिकरेंट आर्टरी। सिंपल है ना, रेडियल रिकरेंट आर्टरी। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो आपकी अल्ना है उससे कॉमन आर्टरी निकली है ना। अल्ना से कॉमन आर्टरी निकली, उसके बाद में 2 आर्टरी निकली। एक क्या निकली? एंटीरियर, और एक क्या निकली? पोस्टीरियर, है ना। एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर निकली उससे एक आर्टरी निकल के ऐसे ऊपर चली जाती है ना, पोस्टीरियरली ही जाती है ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाली जो ब्रांच है इसको मैं बोल सकती हूँ क्या? पोस्टीरियर रिकरेंट इंट्रोशियस, है ना। एंड फ्रॉम पोस्टीरियर इंट्रोशियस। ठीक है, इस वर्ड का मतलब समझे? पोस्टीरियर रिकरेंट इंट्रोशियस फ्रॉम पोस्टीरियर इंट्रोशियस। इसको हमने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि ये जो है आपकी कॉमन इंट्रोशियस से 2 निकली, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। इसी पोस्टीरियर इंट्रोशियस से ऊपर रिकरेंट चली गई, पोस्टीरियर रिकरेंट इंट्रोशियस हो गई। ठीक है, वो मतलब था। अब हम लोग आगे देखेंगे। ये जो आपकी अल्ना है ये अभी भी चुप नहीं बैठी। अल्नर जो आपकी आर्टरी है, ठीक है, ये अभी भी चुप नहीं बैठी। इसने 2 और दी। ठीक है, एक इसने एंटीरियर दी, एक इसने पोस्टीरियर दी, है ना। पोस्टीरियर मतलब डॉटेड से दिखा देती हूँ मैं आपको। एक इसने एंटीरियर दी,
एक इसने पोस्टीरियर दी, ठीक है। एंटीरियर को क्या बोलेंगे हम, जैसे अभी मैंने आपको नाम से बताया, एंटीरियर को क्या बोलेंगे, रिकरेंट बोलेंगे, है ना, अल्नर रिकरेंट आर्टरी। अब हमने इसको क्या बोला, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, क्या बोला, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, समझ गए। और ये वाली जो होगी, ये वाली, ये क्या है हमारी, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। खत्म, कितना सिंपल था, है ना, कितना इजी था। इवन दो ये मुझे ब्लैक से बनाना चाहिए था ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, बट ठीक है, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। चलिए खत्म, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा अब तक, हमने कितने स्ट्रक्चर्स देख लिए, 4 ऊपर वाले, 4 नीचे वाले। नीचे वाले 4 में एक और बार रिवाइज कर दूंगी क्योंकि ऊपर वाले तो आई नो कि आपको 100% हो गए होंगे, ठीक है। तो नीचे वाले कौन से 4 स्ट्रक्चर है, एक है आपका रेडियल रिकरेंट आर्टरी जो कि आपका रेडियल आर्टरी से निकला, आपके अल्ना से निकले, अल्ना से 3 स्ट्रक्चर्स निकले, ठीक है। कौन सा, एक तो आपका एंटीरियर अल्नर रिकरेंट हो गया, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट हो गया, एक और क्या हो गया, पोस्टीरियर रिकरेंट इंट्रोशियस फ्रॉम पोस्टीरियर इंट्रोशियस, है ना। इस वर्ड का मतलब आपको बता चुकी हूँ, ये क्या हो गया आपका एल्बो एनास्टोमोसिस। खत्म, कितना सिंपल, कितना इजी था। अब हम लोग इसको ना मीडियल और लेटरल वे में समझते हैं ना, मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल के टर्म्स में समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ इस तरफ लेटरल, ठीक है, लेटरल, इधर लिखती हूँ मैं आपका मीडियल, है ना, LATERAL, लेटरल, ये हो गया मीडियल, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, लेटरल और मीडियल, इसके ना मुझे जैसे आपने पढ़ा है तो आप धीरे धीरे करके खुद से आंसर दोगे। ये क्या है आपका लेटरल, ये क्या है आपका मीडियल। लेटरल में भी हमने 2 पार्ट ले लिया, एक एंटीरियर ले लिया, एक पोस्टीरियर ले लिया, है ना। और मीडियल में भी हमने 2 पार्ट ले लिया, एक एंटीरियर ले लिया, एक पोस्टीरियर ले लिया। अब मुझे आप ये बताओ, ये जो आपने अभी पढ़ी है ना, आपने सारी ब्रांचेस और आर्टरी पढ़ी है, हम इनको इस कैटेगरी में पुट कर सकते हैं, है ना, ऑब्वियसली पुट कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मीडियल को देखेंगे। मीडियल में एंटीरियरली कौन सा स्ट्रक्चर पास हो रहा है, मीडियल ये वाला कंपार्टमेंट है, इस मीडियल कंपार्टमेंट में एंटीरियरली कौन सा स्ट्रक्चर पास हो रहा है, जल्दी बताओ। एक क्या है ये, इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, क्या हो रहा है, इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, है ना, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, दूसरा क्या है, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, है ना, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। अब हम लोग पोस्टीरियर की बात करते हैं, तो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर में क्या है, ये क्या है आपका, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, है ना, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, पोस्टीरियर होके जाती है मीडियल एपिकॉन्डाइल के। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, ये क्या है, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, क्या है, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। खत्म, ठीक है। यहाँ आई होप आप लोग क्लियर दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रही हूँ, उससे ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है, लेटरल, लेटरल वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। लेटरल वाले पोर्शन में एंटीरियरली अगर हम बात करें तो क्या है, एंटीरियरली जो आ रहा है आगे की तरफ, रेडियल कोलेट्रल आर्टरी, रेडियल कोलेट्रल आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियरली जो आ रही है वो क्या है, मिडिल कोलेट्रल आर्टरी, मिडिल कोलेट्रल आर्टरी। मिडिल कोलेट्रल आर्टरी का दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम क्या है इसका, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। लेटरल में एंटीरियर वाले में एक और कौन सी आएगी, नीचे से जो ऊपर जा रही है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, क्या आएगी आपकी, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, ठीक है, क्या है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी। और अगर पोस्टीरियर की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पोस्टीरियर रिकरेंट इंट्रोशिया फ्रॉम पोस्टीरियर इंट्रोशियस, ठीक है, पोस्टीरियर रिकरेंट इंट्रोशियस फ्रॉम पोस्टीरियर इंट्रोशियस। खत्म, ठीक है, यही था आपका एल्बो एनास्टोमोसिस, पूरा खत्म हो गया, बस इतना सही था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यूबाइटल फोसा। नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके एल्बो में, ये जो गड्ढा है ये क्या है आपका, क्यूबाइटल फोसा प्रेजेंट है। जब हम स्किन हटा देंगे तो हमको अंदर क्यूबाइटल फोसा दिखेगा, है ना, वो हम लोग देखते हैं क्यूबाइटल फोसा कैसा होता है, किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। सेम होमोलोगस, क्यूबाइटल फोसा के जैसा एक और होमोलोगस स्ट्रक्चर है, वो क्या है, पॉप्लिटियल फोसा। क्या है, पॉप्लिटियल फोसा, वो कहाँ प्रेजेंट है, नी के नीचे वाले हिस्से में, है ना, नी के नीचे वाले हिस्से में गड्ढा जो हो जाता है ना, जब अपना घुटना कभी मोड़ोगे तो आपको एक गड्ढा दिखाई देगा, वो क्या होता है आपका पॉप्लिटियल फोसा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे के समझेंगे क्यूबाइटल फोसा। एक चीज सही कर लेना है, यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ पोस्टीरियर रिकरेंट इंट्रोशियस, इस इंट्रोशियस की जगह आपका आर्टरी वर्ड आएगा, ठीक है। क्या वर्ड आएगा, इंट्रोशियस नहीं आएगा, आर्टरी आएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है आर्टरी आएगा क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो आर्टरी बना रहा है, सारी हमारी आर्टरीज है, तो इसको मैंने आर्टरी क्यों नहीं बोला, है ना, कंफ्यूजन हो गई, है ना। ये भी क्या है, हमारी आर्टरी आएगी, ठीक है, ये क्या है, हमारी आर्टरी, पोस्टीरियर रिकरेंट आर्टरी, है ना, बेसिकली क्या है, हमारी पोस्टीरियर रिकरेंट आर्टरी, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फ्रॉम पोस्टीरियर इंट्रोशियस, आई तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस से ही है, लेकिन हमने इसको आर्टरी बोल दिया, क्यों, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर को सप्लाई कर रही है ना, ये आपके एल्बो एनास्टोमोसिस में पार्ट ले रही है, पोस्टीरियर रिकरेंट आर्टरी फ्रॉम पोस्टीरियर इंट्रोशियस, ठीक है। चलो क्यूबाइटल फोसा देखते हैं अब।
चलो अब हम लोग किसकी बात करते हैं, क्यूबाइटल फोसा की, ठीक है। क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है आपका एल्बो, और मैं बता चुकी हूँ क्यूबाइटल फोसा क्या है, ट्राइंगुलर डिप्रेशन है ना, यहाँ पे एक आपका ट्राइंगुलर डिप्रेशन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है ना, इसकी जो बाउंड्रीज हैं, जो इसके रिलेशन है वो किस किस के साथ में है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी एक लेटरल रिज से है ना, यहाँ से कहाँ से, लेटरल रिज से आपकी एक मसल निकलती है ना, ऐसे लेटरल रिज से, ठीक है। और एक यहाँ से निकलती है, एक ये यहाँ से, एक मीडियल एपिकॉन्डाइल से और एक यहाँ से कोर्नोइड से, है ना, ऐसे करके एक ये मसल आई, ठीक है। अब इनके नाम क्या है, ये है आपकी ब्रेकियोरेडियालिस, क्या है, ब्रेकियोरेडियालिस मसल, और ये क्या है आपकी प्रोनेटार टीरिस मसल, ये क्या है आपकी प्रोनेटार टीरिस मसल, है ना, ये क्या है आपकी प्रोनेटार टीरिस मसल। अब देखो, अब हम ना मैं यहाँ पे ऊपर लिखती जा रही हूँ, ठीक है। देखो अब अगर मैं इसकी बात करूं मीडियल की, है ना, मीडियल स्ट्रक्चर की, मीडियल स्ट्रक्चर कहाँ से बना, ये क्या है आपका मीडियल पोर्शन, ये क्या है लेटरल, ये क्या है ह्यूमरस, ये क्या है रेडियस, ये क्या है अल्ना, ठीक है। अगर मीडियल पोर्शन की बात करूं तो ये मीडियल पोर्शन किससे बना है, देखो अगर प्रोनेटार टीरिस का भी देखा जाए तो ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है ना, ये वाला मीडियल बॉर्डर है, ये वाला लेटरल बॉर्डर है। तो अगर मैं बोल सकती हूँ कि लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटार टीरिस मसल, ठीक है, मीडियल वाला किससे बना, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटार टीरिस मसल, ठीक है, किससे बना, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटार टीरिस मसल। अब मैं लेटरल की बात करती हूँ, जो लेटरली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेटरल वाला स्ट्रक्चर किससे प्रेजेंट है, अगर मैं इसको बोलूँ मीडियल और इसको बोलूँ लेटरल तो चलेगा, बाहर वाला पोर्शन लेटरल होता है हमेशा, तो किससे बना, मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस मसल, ठीक है, किससे बना, मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस मसल, है ना, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, प्रोनेटार टीरिस का लेटरल बॉर्डर और ब्रेकियोरेडियालिस का मीडियल बॉर्डर, ठीक है, इन दोनों से क्या बना, मीडियल और लेटरल वॉल्स बन गई, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बेस की, किसकी, बेस की, ठीक है। इमेजिनरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है ना, ऐसे करके, ये जो है इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो दोनों एपिकॉन्डाइल को आपस में मिलाती है, ठीक है, दोनों एपिकॉन्डाइल के पास से होके जाती है आगे से, है ना, इसे आगे से ऐसे, ऐसे अगर हम लोग बात करें आगे से ऐसे, ठीक है, मैं पीछे वाले पोर्शन की बात नहीं करी, आगे वाले पोर्शन की ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये क्या है आपका बेस, बेस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो किसको मतलब मिला रही है, कहां से होके जा रही है, आपकी दोनों एपिकॉन्डाइल से, है ना, जो दोनों है मीडियल और लेटरल जो एपिकॉन्डाइल है वहां से जो पास होके जा रही है, ठीक है, वो हो गया बेस। देखो अब हमने बेस की बात करी, अब हम लोग बात करेंगे फ्लोर की, ठीक है, फ्लोर की। तो आपका जो फ्लोर है उसमें आपकी दो मसल आती है, ठीक है, दो मसल आती है, पहली कौन सी, ब्रेकियालिस, है ना, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस और ब्रेकियालिस में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जो लोग स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर ले रहे हैं उन लोगों को पता होगा दोनों मसल में डिफरेंस क्या है ना, एक आपकी ओरिजिनेट कहाँ से, लेटरल रिज से, और ये जो है आपकी ब्रेकियालिस ओरिजिनेट कहाँ से होती है आपकी, ये एंटीरियर पोर्शन से, मीडियल और लेटरल दोनों के एंटीरियर पोर्शन से ऐसे करके आती है, ये वाली है ना, ऐसे करके। तो ये क्या है, ब्रेकियालिस मसल, है ना, ब्रेकियालिस मसल। और एक क्या है आपकी सुपिनेटार, एक क्या है आपकी सुपिनेटार, ठीक है, सुपिनेटार मसल। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप क्लियरली इस स्ट्रक्चर को देख के समझ सकते हैं कि ये इसका क्यूबाइटल फोसा का बेस बना रही है, सॉरी फ्लोर बना रही है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, आपका क्या हो गया, फ्लोर खत्म हो गया, अब एपेक्स की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे, एपेक्स, है ना। जो आपका एपेक्स है वो कैसा है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड, है ना, अगर इसको हम ऐसे मान लेते तो कैसे है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है। मैं ये फिलहाल के लिए लाइन हटा देती हूँ, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपको दिखाने के लिए बनाई है, ठीक है। ये कैसा है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कैसे है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ, है ना, डाउनवर्ड। और कौन सा है, एक पॉइंट, है ना, एक पॉइंट जहां पे आपकी ये ब्रेकियोरेडियालिस और साथ में आपकी प्रोनेटार टेरिस जो दोनों मिल जाती हैं, है ना, ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है, इसका एपेक्स, है ना, ये क्या है, इसका एपेक्स, जहां पे आपकी दोनों ब्रेकियोरेडियालिस और प्रोनेटार टेरिस ये क्या होती है, आके आपस में ज्वाइन हो जाती है ना, क्रॉस कर देती है एक दूसरे को, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रूफ की, किसकी, रूफ की। तो रूफ में सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, रूफ मतलब ऊपर का एरिया, रूफ में सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, आपकी स्किन, है ना, क्या प्रेजेंट है, स्किन। स्किन के बाद में एक स्ट्रक्चर है वो है मीडियन वेन, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है, मीडियन वेन, है ना, मीडियन क्यूबाइटल वेन या फिर मीडियन वेन भी बोल सकते हैं। मीडियन वेन है क्या, ये देखो, ये आपकी एक क्या थी यहाँ पे, बेसिलिक वेन, है ना। बेसिलिक वेन कहाँ से राइज हुई थी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आपके जो बाइसेप्स हैं, बाइसेप्स के मीडियल लोअर बॉर्डर से, है ना। और फिर साथ में यहाँ पे क्या जाती है आपकी सिफेलिक वेन, ऐसे करके, है ना, सिफेलिक वेन। इन दोनों को जो कनेक्ट करती है आपस में, इन दोनों को जो आपस में ऐसे करके कनेक्ट कर रही है, ये क्या है आपकी, ये जो ऐसे इन दोनों को आपस में, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट कर रही है, यही है आपकी
मीडियन क्यूबाइटल वेन, ठीक है। तो मैं उसी की बात की, ये क्या आ गई एक और आपकी मीडियन वेन, रूफ मतलब ऊपर की तरफ है ना, ये क्या है आपकी मीडियन वेन। अब आप देखो इस मीडियन वेन से रिलेटेड मैं एक दो चीजें आपको और बता देती हूँ। ये जो मीडियन वेन है ना, यहीं से जब आपका ब्लड सैंपल लेते हैं ना तो इसी वेन से लिया जाता है, या फिर जब आपको आईवी है ना, आईवी इंट्रावेनस जब इंजेक्शन लगाने होते हैं तो इसी में लगाते लोग है ना, मीडियन वेन में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो क्या आता है आपका, एक ऐसे करके निकल के जा रहा है एक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे करके, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या है मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर ऐसे करके निकल के जा रहा है ना, ऐसे करके, तो ये क्या है आपका, ये वाला जो स्ट्रक्चर ऐसे निकल के जा रहा है, ये वाला क्या है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये किसकी ब्रांच है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। जब मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले एक और मैंने आपको नर्व बताई थी, कौन सी बताई थी, तो इससे आप समझ जाओगे ना, हिंट दे रही हूँ। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म क्या है, मैंने बताया था रेडियस की तरफ से जाकर कटती है, एक जो डीप फेशिया होता है उसको मतलब छेद करके उसमें से निकल के जाती है। ये किसकी ब्रांच है, ये जो है ये है आपकी मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व की ब्रांच, ठीक है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं, ये यहाँ पे मैं आपके दोनों स्ट्रक्चर्स लिख देती हूँ, ठीक है। रूफ में आपके दो स्ट्रक्चर्स रूफ में दो स्ट्रक्चर्स रूफ में आपके दो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से प्रेजेंट है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर्स आपके किस में प्रेजेंट है, रूफ में, मतलब टोटल 4 स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। यही पूरा जो है, ये पूरा जो मैंने आपको बताई बाउंड्रीज बताई हैं, ठीक है। क्या बताई है मैंने आपको, बाउंड्रीज क्यूबाइटल फोसा की, ठीक है। क्या है बाउंड्रीज। अब एक क्या रह गया लास्ट हमारा कंटेंट ऑफ क्यूबाइटल फोसा। बाउंड्री समझ में आ गई, एक और बार क्विक रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। मीडियल पे क्या है, ये मीडियल पे क्या है आपका लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटा आर्टेरिस, लेटरल साइड क्या है मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस। बेस की बात करें, बेस में क्या है एक इमेजिनरी लाइन है ना, एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कॉन्डाइल्स को ऐसे कॉन्डाइल्स के बीच में से पास हो रही है, ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट पे, पोस्टीरियर पे नहीं एंटीरियर एस्पेक्ट पे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है फ्लोर में आपकी कौन कौन सी मसल है, ब्रेकियालिस मसल और सुपीरियर मसल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एपेक्स की। एपेक्स कैसा है आपका, डायरेक्टेड डाउनवर्ड है ना, जहां पे आपके दोनों ये जो है ब्रेकियोरेडियालिस और प्रोनेटा टेरिस की क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है आपका रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है रूफ में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गया, आपकी स्किन के बाद क्या आ गया मीडियल क्यूबाइटल वेन, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, खत्म। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंटेंट की, ठीक है, कौन कौन से कंटेंट पास हो रहे हैं। एक मिनट, चलो अब हम लोग आगे इसके कंटेंट को देखते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये यहां से लेके ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एकदम से ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, यही है आपका क्यूबाइटल फोसा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, यही क्या है आपका क्यूबाइटल फोसा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है क्यूबाइटल फोसा। इसके कंटेंट देख लेते हैं, इसमें से क्या पास होके जाता है, सोच सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर कोई आइडिया है तो कहाँ लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। क्या क्या निकल के जाता है आपका, एक होती है आपकी मीडियन नर्व, ठीक है, एक क्या है आपकी मीडियन नर्व, MN मतलब मीडियन नर्व, बहुत दूर हो गया, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ से शायद आपको क्लियरली दिखाई भी दे जाए, ठीक है। क्या निकल के गई आपकी यहाँ से मीडियन नर्व, ठीक है, क्या निकल गई मीडियन नर्व। उसके बाद में क्या गई आपकी ब्रेकियल आर्टरी है ना, ब्रेकियल आर्टरी की भी टर्मिनल ब्रांचेस है ना। देखो जब आपकी ब्रेकियल आर्टरी, मैं ऐसे करके डॉटेड पोर्शन बना रही हूँ, ब्रेकियल आर्टरी आई यहाँ पे, तभी तो वो ऐसे करके 2 में डिवाइड हो गई है ना, ब्रेकियल आर्टरी और उसकी टर्मिनल ब्रांचेस है ना। टर्मिनल ब्रांचेस में क्या आ जाएगी आपकी रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी है ना। क्या क्या आ गई आपकी रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, रेडियल आर्टरी अल्नर आर्टरी। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, टेंडन, किसका टेंडन आपका बाइसेप्स का टेंडन। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी, यहीं पे तो आके बाइसेप्स मसल का टेंडन कनेक्ट हो रहा है ना, यहीं पे आगे तो बाइसेप्स मसल का टेंडन कनेक्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो गया आपका बाइसेप्स का टेंडन, ठीक है। लास्ट हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे रेडियल नर्व, ठीक है, रेडियल नर्व। मैं एक और यहाँ पे लिख देती हूँ बाइसेप्स का टेंडन, और एक और क्या है आपकी जगह है कहीं, यहीं पे लिख देती हूँ, एक और क्या है आपकी रेडियल नर्व, ठीक है। ऊपर इसीलिए लिख दिया ताकि मतलब थोड़ा सा तो दिखाई दे जाए है ना, वरना इतने सारे स्ट्रक्चर में दिखाई तो देगा नहीं। कंजूसी नहीं कर रही, लिख तो मैं दोबारा भी सकती थी, बट मुंह से भी बोल रही हूँ, तो अपनी मेमोरी थोड़ी शार्प रखिएगा, ठीक है। ये हमारी बाउंड्रीज है और ये हमारे छोटे से कंटेंट है जो पास होते हैं, लेकिन है बड़े छोटे बट बहुत काम की चीज है। क्या क्या है देखो, रिवाइज करेंगे। मीडियन नर्व, ठीक है, मीडियन नर्व पास में मैंने आपको बताया था ना, ऐसे करके आती है और ऐसे करके निकल जाती है, ऐसे आई इसी क्यूबाइटल फोसा में से ऐसे करके निकल गई, ऐसे आई ऐसे निकल गई है ना। क्या है आपकी मीडियन नर्व। एक क्या है आपकी मीडियन नर्व के बाद में ब्रांच है, जैसे ब्रेक, ये जो है आपकी ब्रेकियल आर्टरी है, ये आई, फिर यहाँ से ये 2 में डिवाइड हो गई है ना, इससे रेडियस के हेड से ऐसे 2 में डिवाइड हो गई है ना। तो ये क्या हो गई आपकी, एक बताओ मुझे, एक रेडियल आर्टरी हो गई, एक अल्नर आर्टरी हो गई है ना। उसके बाद में क्या है यहाँ पे एक टेंडन इंसर्ट होता है, किसका टेंडन इंसर्ट होता है आपका बाइसेप्स का।
है ना, एक आपका बाइसेप्स का टेंडन यहाँ पे इंसर्ट हुआ। अब बाइसेप्स के टेंडन के बाद एक और क्या मैंने आपको बताया, रेडियल नर्व। रेडियल नर्व में भी दो ब्रांचेस होती है, एक सुपरफिशियल एक डीप। जो डीप वाली होती है हमने उसको क्या नाम दिया, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, है ना, क्या नाम दिया, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, PIN। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था जब हम लोग मसल्स पढ़ रहे थे, है ना, ये हम लोग रेडियस की मसल जब पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था क्या है आपकी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ठीक है, क्या है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। तो वो कहाँ से निकलती है, जो सुपिनेटार है ना, सुपिनेटार क्या है, फ्लोर है ना, किसका फ्लोर, क्यूबाइटल फोसा का, उसको छेद करके चली जाती है, पार करके, वो क्या है आपकी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ठीक है, तो वो यहाँ से पास होती है। तो और एक रेडियल नर्व का एक सुपरफिशियल तो होता है, डीप वाला हिस्सा भी चला जाता है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। क्लियर है, ये बस इतना सा ही था आपका क्यूबाइटल फोसा, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं था। देखो ये क्या हो गया इसकी बाउंड्रीज, ये क्या हो गया उसका कंटेंट, है ना। अब मैं ये आपको थोड़ा सा अपने हाथ पे बना के डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ, है ना, मजा आएगा। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, एक आपकी लेटरल रिज से क्या निकली, ये जो मैंने बनाई है ये क्या निकली है आपकी ब्रेकियोरेडियालिस मसल। ठीक है, यहाँ से एक आपकी ऐसे करके ये गई, ये क्या गई आपकी प्रोनेटा टीरिस, है ना, ये क्या गई प्रोनेटा टीरिस मसल। ठीक है, उसके बाद में और क्या क्या स्ट्रक्चर थे, देखो ऐसे करके एक ये आई आपकी मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ये क्या आई आपकी ऐसे करके लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ रहा है। एक ऐसे करके आई, ये क्या है आपकी मीडियल क्यूबाइटल वेन, ये क्या है आपकी मीडियल क्यूबाइटल वेन, जो कि किस किस से बनी हुई है, किस किस स्ट्रक्चर्स को ये आपस में जोड़ रही है। यहाँ पे आपकी एक बेसिलिक वेन होगी और यहाँ पे आपकी एक सिफेलिक वेन होगी, है ना, उन दोनों को ऐसे लिंक करती है, तो ये क्या है मीडियल क्यूबाइटल वेन है। अब देखो ये हमने मीडियल लेटरल बॉर्डर की बात कर ली, ये एपेक्स वाला पोर्शन है ना, जो दोनों को क्या कर रहा है, मतलब दोनों नर्व को यहाँ पे जो दोनों मसल्स है, नर्व्स ने दोनों मसल्स को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना, आपका ये वाला जो पोर्शन है एपेक्स हो गया। बेस की बात कर लो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसने क्या बना दिया बेस। ठीक है, अब उसके अंदर फ्लोर की बात करें तो एक आपकी सुपिनेटार मसल, जब आप स्किन हटाओगे सब फाड़ दोगे तो उसके अंदर आपको एक सुपिनेटार मसल दिखाई देगी, एक ब्रेकियालिस मसल दिखाई देगी, है ना। सुपरफिशियल बात कर ले, सुपरफिशियल में क्या थी आपकी स्किन थी, मीडियल क्यूबाइटल वेन थी, फिर क्या थी आपकी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, है ना, बस खत्म। ये क्या है आपका ये वाला जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका क्यूबाइटल फोसा, ये क्या है आपका क्यूबाइटल फोसा, खत्म हो गया आपका, यही है आपका गड्ढा क्यूबाइटल फोसा। ये देखो ऐसे करोगे तो ये क्या मिल रहा है आपको, क्यूबाइटल फोसा, पाल्पेट करो, है ना, क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब इसके कंटेंट की बात कर लेते हैं, अंदर अंदर वो मैं दूसरे मार्कर से दिखाती हूँ। ठीक है, अगर हम लोग इसके कंटेंट की बात करें तो एक क्या निकल के गई यहाँ से, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेकियल आर्टरी ऐसे करके आती है, जो यहाँ पे आके दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक रेडियल में बढ़ गई और एक किस में चली गई आपकी अल्नर में, है ना, रेडियल और अल्नर में आके चेंज हो गई। फिर क्या है एक और क्या है आपकी यहाँ पे मीडियन नर्व, है ना, मीडियन नर्व, ये आपकी जो ब्रेकियल आर्टरी है उसके ऐसे ऊपर से घूम के आती है ना, लेटरल से मीडियली की तरफ आती है ना, लेटरल से मीडियली की तरफ आती है। ये जो मैं डार्क करके दिखा रही हूँ, डार्क करके ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये क्या है आपकी ब्रेकियल आर्टरी, है ना, जो टर्मिनल पे आके यहाँ पे टर्मिनल ब्रांचेस ये टर्मिनल बोल रही हूँ, है ना, ब्रेकियल आर्टरी है जो कि यहाँ पे आके उसकी दो टर्मिनल ब्रांच हो गई, एक क्या होगी रेडियल, एक क्या हो गई आपकी अल्नर। उसके बाद में ये जो ऊपर से स्ट्रक्चर आया है ना, ये क्या है आपकी मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, ये भी इसी फोसा में से जाके पास होनी है। ठीक है, उसके बाद में एक रेडियल नर्व, है ना, ये जो आपकी पीछे यहाँ से आती है ना, किधर से क्या है ये पीछे रेडियल ग्रूव, रेडियल ग्रूव से ऐसे पीछे से जो आती है वो क्या करती है आपकी दो ब्रांचेस में जाके डिवाइड हो जाती है, एक होती है आपकी सुपरफिशियल, एक होती है आपकी पोस्टीरियर इंट्रोशियस। ये अगर ऐसे करके रेडियल नर्व ऐसे आगे से अगर आती है ना, तो वो भी इसी फोसा में से जो है वो पास होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसके क्यूबाइटल फोसा के जो है ये कंटेंट है। ठीक है, आगे समझ में, आगे समझ लो सब कुछ, बस दैट्स ऑल फॉर द टुडे। यही हमारा लेक्चर था। ब्रेकियल आर्टरी मैंने आपको बता दी, एल्बो एनास्टोमोसिस बता दिया, क्यूबाइटल फोसा बता दिया। क्या सोच रहे हो, एल्बो एनास्टोमोसिस हाथ पे बना के दिखाऊं, मजा आएगा क्या आप लोगों को? चलो ठीक है, लेकिन वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, चलो आ जाओ, मैं आपको हाथ पे बना के दिखाती हूँ आपका एल्बो एनास्टोमोसिस कैसे दिखता है। ओके, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको पूरा एल्बो एनास्टोमोसिस बना लिया है। ठीक है, अब मैं ये आपको समझाती हूँ एल्बो एनास्टोमोसिस एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है आपकी ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद में ये क्या है आपकी प्रोफंडाई ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, प्रोफंडस ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद में क्या है, ये दो हिस्से में बढ़ गई थी, एक क्या था एंटीरियर वाला और एक क्या है आपका पोस्टीरियर वाला जो पीछे से जाता है। एंटीरियर डिसेंडिंग है, ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग है। एंटीरियर डिसेंडिंग का दूसरा नाम क्या था, रेडियल कोलेट्रल, है ना, और ये जो पोस्टीरियर वाली है इसका दूसरा नाम क्या था, मिडिल कोलेट्रल। उसके बाद में इधर आ जाते हैं, ये कौन सी है, ये क्या है आपकी सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल। नीचे वाली क्या है, इन्फीरियर अल्नर कोलेट्रल। तो इससे ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाले पोर्शन की हम लोग बात करते हैं, ये नीचे वाले पोर्शन की। ठीक है, तो आपने देखा कि ब्रेकियल आर्टरी इधर रेडियस की तरफ है ना, ये थंब है, थंब के साइड में यहाँ पे कौन सी रेडियस, तो रेडियस की तरफ जाके नेक ऑफ द रेडियस से इसके दो हिस्से हो गए, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा,
है ना, 2 हिस्से हो गए, एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया। तो ये जो 2 हिस्से हुए जिसमें से एक जो हिस्सा है ना ये वाला, इसको क्या हमने बोल दिया, रेडियल आर्टरी। इसको क्या बोल दिया हमने, अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी से आपकी एक निकली, ये क्या निकली, ये जो ऊपर की तरफ आ गई रेडियल रिकरेंट आर्टरी। क्या निकली, रेडियल रिकरेंट आर्टरी। अब अल्नर की बात करते हैं, अल्नर से भी आपकी 2 निकली, एक क्या निकली, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, और एक पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो अल्ना है वो एक कॉमन ब्रांच देती है जिसमें से 2 निकलते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, है ना, 2 निकलते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। पोस्टीरियर से भी आपकी एक और पीछे से होके, जब ये बना तो सकती नहीं, ये ऐसे करके पीछे से होके ऐसे करके आती है ना, और ये यहाँ पे सप्लाई करती है, दिखाई दे रहा है, ऐसे पीछे करके आती है और यहाँ पे आपको सप्लाई करती है ना। तो ये मैंने यहीं से ऊपर से बना दिया, वरना ये भी जो है, ये जो यहाँ से बनाई है ना, ये ऐसे आपको पीछे से आएगी, ये ऐसे करके पोस्टीरियर वाली, है ना, पोस्टीरियर वाली ऐसे पीछे से आएगी, एंटीरियर वाली ये आएगी ऐसे करके, क्योंकि इसको पूरी एल्बो कवर करनी है ना। तो ये एंटीरियर हो गई और ये पोस्टीरियर वाली ऐसे पीछे से आती है, ऐसे पीछे चली जाती है, ऐसे पीछे से आती है, पोस्टीरियर वाली हो गई। और ये दोनों तो सामने से होती है ना। ये जो मैंने आपको सुपीरियर वाली बताई है, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये जो आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल है इसके पीछे से यहाँ पे सप्लाई करती है, मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे, है ना। और ये क्या है आपकी, ये जो मैंने आपको बताया एंटीरियर, पोस्टीरियर वाली भी जब मैं बात करूंगी तो पोस्टीरियर वाली भी यहाँ पे सप्लाई करेगी। देख रहे हो पूरी एल्बो को किस तरीके से कवर कर रखा है, पोस्टीरियर वाली भी यहाँ पे सप्लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद में एंटीरियर हो गई, पोस्टीरियर हो गई, फिर ये एंटीरियर कॉमन आर्टरी से एंटीरियर निकली, जो पोस्टीरियर निकली है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वाली जो पोस्टीरियर है ये इधर से आके इसको सप्लाई करेगी, ठीक है। आगे समझ में, खत्म। यही था हमारा क्या, एल्बो एनास्टोमोसिस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक कुछ चीज और देख लेते हैं जो मैंने आपको बताना भूल गई थी, मस्कुलर ब्रांच, है ना, जो आपकी ब्रेकियल आर्टरी वो मस्कुलर ब्रांच भी देती है ना, बाइसेप्स को आपकी सप्लाई करती है, मसल्स को मस्कुलर ब्रांच भी देती है वो आपकी, ठीक है। ये जो दोनों यहाँ पे मैंने बना रखी है छोटी छोटी, ये क्या है, मस्कुलर ब्रांच है, ठीक है। बस इतना सा था। ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस भी समझ में आ गई आपको, एल्बो एनास्टोमोसिस भी समझ में आ गया होगा। एंटीरियर पोस्टीरियर मैंने बता दिया, ये एंटीरियर स्ट्रक्चर है, यहीं से पीछे से पोस्टीरियर वाला स्ट्रक्चर आता है, ये इसके पीछे से जाती है, ऐसे करके पीछे से पास हो गई, ये दोनों आगे ही रहती है, मतलब ये वाली जो है रेडियल रिकरेंट आर्टरी आगे ही होगी। उसके बाद में अल्ना से जो निकली है ना, अल्ना से क्या निकली, पोस्टीरियर रिकरेंट, है ना, पोस्टीरियर रिकरेंट आर्टरी, वैसे पीछे से जाके सप्लाई करती है आपको, ठीक है। एक आपकी एंटीरियर होगी और फिर एक जो अल्ना से एक और निकली, एक और अल्ना से क्या निकली, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, वो ऐसे ऐसे पीछे की तरफ आके सप्लाई करती है ना, यहाँ से नहीं, ऐसे पीछे की तरफ जाके यहाँ पे सप्लाई करती है ऐसे, ठीक है। यही क्या है आपका एल्बो एनास्टोमोसिस, खत्म। अब देखो मैंने आपको ब्रेकियल आर्टरी भी हाथ पे समझा दी, और ये क्या है आपका एल्बो एनास्टोमोसिस भी मैंने आपको हाथ पे बता दिया। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, 1 मिनट, ये जो पूरे स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है आपका एल्बो एनास्टोमोसिस, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको क्यूबाइटल फोसा भी बता दिया, देख लो मेरे दोनों हाथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्यूबाइटल फोसा ही बता दिया, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ तो बच्चा लोग मजा आ रहा है पढ़ने में? भले मैंने 2 दिन बाद वीडियो बनाई, लेकिन बिल्कुल 100% डेडिकेशन के साथ वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। सो ये टॉपिक अब आप कभी मत भूलना, अपने ऊपर अपने हाथ पैरों पे बना के देख लो, कभी नहीं भूलना है आपको टॉपिक, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है आपको, इस वीडियो को सबसे पहले तो शेयर करना है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो साथ में आपके एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना। अगर एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे तो ऑर्थोपेडिक्स या फिर और कोई सब्जेक्ट, बायोमैकेनिक्स है ना, 2nd, 3rd, 4th ईयर में भी है, जो भी आपके सीनियर्स है, अगर आपको लगता है कि अच्छी वीडियो है तो प्लीज उन तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़ पाएं और अच्छे से समझ पाए, है ना। सो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।